Welcome everyone to UPSCpedia. We are back again with our video series of previous year's questions from UPSC Civil Services preliminary exam. Today we are back again with the subject of polity, and we are going to discuss some of the questions which came in UPSC Civil Services prelims exam of 2021 from polity section. Okay, so before starting the lecture, let's first understand the analysis of polity as a subject for last 6 years. Okay, so in 2019 almost 13 questions were asked, in UPSC 2020 almost 15 questions were asked, and as of in 2021 almost 18 questions were asked from polity. Now polity is a very important conceptual subject. It's one of the main pillars of prelims as well as mains exam. Okay, we could also see the number of questions and the analysis of last 6 years, which is from 2016 to 2021. So apart from that, we are also going to look today the weightage of subtopics of polity questions from last 6 years, that is 2016 to 2022. So from legislature almost 16 questions are asked, from fundamental rights, fundamental duties and DPSP almost 18 questions are asked, and remaining topics also the respective number of questions are asked. This graph is not plotted. This graph has been not plotted to anticipate the questions, but rather to understand the important topics which are asked in UPSC Civil Services prelims exam. Okay, so legislature, executive, preamble, constitution, local government, etc., etc. The list has been explicit, but these are the main topics which and subtopics which have been asked. Okay, so polity is one of the subject which is very important and an important pillar for prelims as well as mains exam. Polity is important because of three things. First, it has limited sources. There are other subjects which has multiple arrays of sources. Multiple books has to be revised as well as read. But polity is such a subject which has limited resources. Therefore, its input to output ratio is very very high. आप जितना वक्त पॉलिटी करने के लिए लगाओगे तो आउटपुट रेशो उसका हाई रहेगा, राइट? और साथ ही साथ इफ यू आर हैविंग इनफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट पॉलिटी, देन डेफिनेटली in spite the question is very difficult or tough, you will solve that question. Okay, so here are some of the list of important standard books as well as NCERT. So there is only one important standard book which is the Holy Grail or Bible, that is M. Lakshmikant, and rest of the books are NCERTs. Okay, of which Indian Constitution at Work and Political Theory are very very important. Now with discussion of this analysis as well as the subject of polity, let's move to our first question which came in UPSC Civil Services prelims exam of 2021. So question number 1 says, what was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? So एक बहुत ही easy question था, एकदम simple question. Okay, in spite बहुत of the most of the candidates would have read about this question, and even if candidates have not read about this question, इस question को solve किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि सेक्युलर और सोशलिस्ट ये जो टर्म्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किए गए थे, और इंडिया तो जब इंडिपेंडेंट हुआ था सोवरिनिटी के लिए बहुत सारे लीडर्स फाइट कर रहे थे. एम आई राइट? वी वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वी वांटेड सोवरिनिटी, राइट? तो इसका आंसर आ जाता है बी. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. इसमें एलिमिनेशन भी अगर यूज करना हो तो ऑटोमेटिकली सेक्युलर और सोशलिस्ट इस टर्म्स को एलिमिनेट कर दो, यू कम विथ ए एंड बी, एंड वी ऑल नो कि सोवरिन तो हम पहले इंडिपेंडेंस से थे, राइट? तो ये इजी था. बेसिक एनसीईआरटी एम लक्ष्मीकांत से भी कवर हो सकता है. एडजेक्टिव्स टू रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक के आगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है कंट्री का, उसको याद रखने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे कि SSDR हो गया, या फिर 100 से दे रे, ये भी हो गया. दीज आर जनरल निमोनिक्स विच पीपल यूज. तो आप 100 से दे रे मीन्स सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, राइट, एंड रिपब्लिक. तो ये सारे एडजेक्टिव्स हो गए. हाउ इंडिया इज अ रिपब्लिक. ओके, तो वी ऑल नो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 एडेड सोशलिस्ट, सेक्युलर एज वेल एज इंटीग्रिटी. एंड 26 जनवरी 1950 में जो भी स्टेटस था इंडिया का, यही दिन पे क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है? इट इज बिकॉज दिस वॉज द डेट वेयर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड और एक्सेप्टेड बाय द इंडियन पीपल. ओके, ये डे ऑफ एनफोर्समेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का.
So when the day of was on the day on which the constitution was enforced, तब का स्टेटस उन्होंने पूछा है, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, राइट? सो दैट इज सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसके ऊपर 2016 में एक मेंस का क्वेश्चन भी आया था, सो देयरफॉर वी एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स विल मेक दिस क्वेश्चन राइट। ओके, 2016 में मेंस में क्वेश्चन ये आया था कि एडजेक्टिव्स अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक उनको डिस्कस कीजिए, मतलब ये जो भी है सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इन सारे टर्म्स को आपको डिस्कस करना है। और साथ ही साथ सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, मतलब ये टर्म्स जो भी है एडजेक्टिव्स रिपब्लिक के सामने, आर दे डिबेटेबल, क्या वो होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक वी आर मोर देन क्लियर हियर। A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates one of the following articles of the constitution। ओके, तो उन्होंने जनरली ये पूछा है कि अगर अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर होगी इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, क्या एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो फिर वो कौन से आर्टिकल को वायलेट करेगी, विच आर्टिकल इट विल वायलेट। सो वन ऑफ द ट्रिक टू सॉल्व मेनी ऑफ द डिफिकल्ट पॉलिटी क्वेश्चंस इज, अगर कोई भी पॉलिटी का स्टेटमेंट हो या फिर कोई भी पॉलिटी का क्वेश्चन हो, यू ट्राई टू यूज अवेयरनेस फर्स्ट एंड सेकेंड यू ट्राई टू कन्वर्ट दैट स्टेटमेंट और क्वेश्चन इनटू एन एग्जाम्पल। तो सिंपल सी बात है, अगर अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाता है, मतलब इट विल अफेक्ट द रूल ऑफ लॉ, एम आई राइट, रूल ऑफ लॉ। और जब रूल ऑफ लॉ अफेक्ट होगा तब इनइक्वालिटी होगी। अनकंट्रोल और डिस्क्रिशनरी पावर अगर कोई यूज करेगा इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉ तो ऑफकोर्स इनइक्वालिटी होगी एंड देयरफॉर उसका आंसर आर्टिकल 14 होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया बाय पिकिंग आर्टिकल 32। लेकिन आप इसमें ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर अगर आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन लेती है तो प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है नहीं। अगर प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है तो फिर आप आर्टिकल 32 से रेमेडीज कैसे मांग पाओगे, बिकॉज आर्टिकल 32 इज ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो देयरफॉर ये आर्टिकल 32 वाला ऑप्शन जो है, मेनी स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज बिटवीन आर्टिकल 14 एंड 32, लेकिन 32 एक गलत आंसर है। तो लॉजिक तो हम देख ही सकते हैं, ये एक टफ क्वेश्चन था लेकिन लॉजिक भी आप लगा सकते हो। तो हर एक ऑप्शन को लीजिए और एग्जाम्पल में कन्वर्ट कीजिए। तो वी कुड डू इज दैट आर्टिकल 28 तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में, 44 तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचा 32 और 14। तो जब हम उनको एग्जाम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाता है। तो आर्टिकल 32 है रेमेडीज फॉर फंडामेंटल राइट्स ओनली। अगर कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि फंडामेंटल राइट्स को हार्म नहीं करती लेकिन आपकी अदर राइट्स को हार्म करती है, सो यू कैन नॉट यूज आर्टिकल 32। देयरफॉर आर्टिकल जो 14 है वो मोर फिटिंग है इसका आंसर। ओके, सो अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर मतलब रूल ऑफ लॉ को वायलेट करता है और देयरफॉर फिर वो आर्टिकल 14 के एक क्लॉज में रूल ऑफ लॉ एक्सेप्शनली मेंशन किया गया है। तो देयरफॉर इसका आंसर आर्टिकल 14 आता है। Okay, let's move to the next question. Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates. Easiest question from the polity section. इसका आंसर DPSP है। एक्सक्लूसिवली DPSP में ये मेंशन किया गया है। We could see easy है, नॉलेज तो रिक्वायर ही होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं इसमें भी थोड़ा लॉजिक लगाया जा सकता है। और इसमें लॉजिक ये है कि सिंपल सी बात उन्होंने पूछी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और वेल्थ जो टर्म है इट इज़ रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो डीपीएसपी का एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो उससे आंसर आ जाता है। और एंड द नॉलेज पार्ट इज आर्टिकल 39B एंड 39C, दोनों के दोनों ये बताते हैं दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा सोसाइटी में। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, एज वेल एज ओनरशिप और जो भी मटेरियल रिसोर्सेस है वो भी एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे। ओके, सो देयरफॉर, और जो लास्ट ऑप्शन था जिसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बहुत ही कंफ्यूज हो चुके थे कि कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, तो इसका आंसर आ सकता है, बट एक्सक्लूसिवली डीपीएसपी में ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मेंशन किया गया है एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट। एंड जहाँ तक कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर की बात आती है, वेलफेयर एक कंसेप्ट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इकोनॉमी और वेल्थ, वेलफेयर एक होलिस्टिक कंसेप्ट है, तो देयरफॉर वो ऑप्शन डी नहीं आता है इसका आंसर। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, अब राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया is legal right available to citizens only, legal right available to any person, fundamental rights available to citizen only, and neither a fundamental right nor a legal right.
हम सबको पता है राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, उसके बाद उस फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया गया और फिर वो एक लीगल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। एम आई राइट? तो इससे ऑप्शन डी तो इलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज इट इज सेइंग नीदर फंडामेंटल राइट, जो तो वो तो सही है बट नॉट अ लीगल राइट। नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नाउ सी ऑप्शन भी देखिए, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। हमें तो पता ही है राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है नहीं, तो ये भी इलिमिनेट हो गया। नाउ द क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट हियर क्योंकि ऑप्शन बहुत ही क्लोज है। देखिए, इट इज अ लीगल राइट सही बात है, बट इज राइट टू प्रॉपर्टी ओनली टू सिटीजन्स और इज इट टू एनी पर्सन इन द कंट्री? तो जब आप ईच स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हो एग्जाम्पल में तो इसका आंसर आ जाता है। तो सपोज राइट टू प्रॉपर्टी बस सिटीजन्स के पास होता तो फॉरेनर्स क्या करते, इंडिया में एफडीआई कैसे आता? सो देयरफॉर इसका आंसर बी है, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। अब लॉजिक देखते हैं, सी और डी तो हम इलिमिनेट कर देते हैं, वी आर लेफ्ट विथ ए एंड बी। इवन इफ ए एंड बी आर डिफिकल्ट बट वी आर एट 50-50, सो वी कैन टेक अ चांस हियर। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल ये लगा सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है हम एफडीआई इंडिया में बढ़ाना चाहते हैं, राइट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेनर इंडिया में आता है और एफडीआई में इन्वेस्ट करता है, of course that foreigner will also buy some property, land or real estate or anything. So would that foreigner come if there is no right to property in that country? वो नहीं आएगा बिकॉज उसको सिक्योरिटी नहीं है, उसके प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी नहीं है। तो उस लॉजिक से देयरफॉर इट इज़ अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। और अगर ये लॉजिक आप नहीं लगा पाए तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो आर्टिकल 300A है विच इज रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी, वहां पर स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है दैट इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ओके, एंड हम तो जानते ही है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1978 इसने प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिपील कर एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी एक बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं है। ओके, इट इज constitutional and legal right, it is not a fundamental right. Okay, let's move to the next question. Right to privacy is protected under the article of the Constitution of India. Which article? Simple सा question है, again a easy question. इसका आंसर है C, because right to privacy is related to life and personal liberty. Okay, इसका explanation देखते हैं हम। बहुत ही easy question था। प्राइवेसी, और इधर भी लॉजिक लगाया जा सकता है अगर आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है, बट ऐसा होगा नहीं। 99% ऑफ स्टूडेंट मे हैव रेड अबाउट इट। प्राइवेसी के ऊपर बहुत सारे जजमेंट्स हुए थे। ओके, लेकिन प्राइवेसी एक ऐसी चीज़ है विच इज़ रिलेटेड टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राइवेसी कभी भी पर्सनल होती है, तो उधर से आपका आंसर आ गया। और हमको ये भी पता है कि जो आर्टिकल 21 है इसमें बहुत सारे डिराइव्ड राइट है। डिराइव्ड राइट जैसे कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्राइवेसी को फ्रीडम के साथ कंफ्यूज मत करना है यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम एक एक्सप्लिसिट 6 राइट्स है फ्रीडम के अंदर, तो हमें वो पता है। तो राइट टू प्राइवेसी फ्रीडम के अंदर नहीं आएगा। हम ये भी जानते हैं कि वो केस थी जस्टिस के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस लैंडमार्क केस में ये कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21। ओके, तो इट इज़ वन ऑफ द डिराइव्ड राइट्स अंडर आर्टिकल 21। आज जाकर यू कैन इवन रिवाइज द डिराइव्ड राइट्स अंडर आर्टिकल 21। Now, next question. With reference to India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile. Second, a citizen by birth only can become the head of state. And third, a foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstance. अभी ये टोटली इलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन को पहले इलिमिनेट कर दो। हम सबको पता है कि फॉरेनर्स को सिटीजनशिप दी जाती है, बट इफ दे कमिट सर्टन एरर्स और इफ दे डू सर्टन थिंग्स तो उनकी सिटीजनशिप कैंसिल भी, रिवोक भी की जा सकती है, या फिर उनकी सिटीजनशिप कैंसिल भी की जा सकती है। ओके, तो ये तो हमें पता है, तो थर्ड को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब सेकंड देखिए, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट। ये तो यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये इंडिया में नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में वो नेचुरल बर्थ का कंसेप्ट है। हम यहाँ पर लाइक मिस्टर बराक ओबामा का भी एग्जांपल ले सकते हैं। बराक ओबामा के फादर केनियन है और मदर अमेरिकन है, बट बराक ओबामा हैज़ बीन बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। As he has been born in state of America, that's why he became the president of the country. Okay, so United States में it is compulsory that you should be born in America. India में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। Tomorrow a foreigner or any person living outside of India may come to India, get the citizenship,
और देन ही एंड इफ ही इज एलिजिबल टू बी द प्रेसिडेंट देन ही कैन बिकम द प्रेसिडेंट. तो नेचुरल बर्थ की कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया में. ओके, एंड ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली विथ रेफरेंस टू इंडिया पूछ रहे हैं. और फर्स्ट, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल. ये भी करेक्ट है. हम सबको पता है कि इंडिया में तो वन सिटीजनशिप होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को वन डोमिसाइल पे डाउट था. लेकिन ये डाउट भी क्लियर किया जा सकता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ स्टूडेंट हु इज फ्रॉम महाराष्ट्र, he goes for study or job in any other state and he stays there for 2 or more years or maybe more years, लेकिन उसका रेसिडेंशियल एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका डोमिसाइल कभी चेंज नहीं होगा. हमने व्हेन वी स्टडी फॉर वेरियस सिविल सर्विसेज एग्जाम एज वेल एज स्टेट सर्विसेज एग्जाम, हम ये जानते हैं कि कुछ कुछ स्टेट ओनली अलाउ द स्टूडेंट्स विच आर द डोमिसाइल ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. जैसे ओडिशा हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया. सो दे मेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट डोमिसाइल ऑफ 10th एंड 12th, मतलब आपने जब 10th और 12th की थी तो यू शुड बी फ्रॉम दैट स्टेट ओनली. तो इट इज़ नथिंग बट वन फॉर्म ऑफ डोमिसाइल. तो ये लॉजिक था, इसलिए इसका आंसर है वन ओनली. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम. सो ये मॉडरेट क्वेश्चन था, लॉजिकल था, एलिमिनेशन के वेरी हाई चांसेस थे. हमें तो पता ही है कि अ सिटीजन कैन बिकम हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज बर्थ. ओके, जस्ट वो सिटीजन होना चाहिए और एलिजिबल होना चाहिए प्रेसिडेंट होने के लिए. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा नहीं है. हमने बैरक ओबामा का एग्जाम्पल तो ले ही लिया. सिटीजनशिप इंडिया में फॉरेनर्स की कैंसिल हो सकती है अगर वो बहुत सारे एक्ट्स करते हैं, जैसे कि इफ़ दे आर डिसलॉयल, इफ़ दे आर डिसअफेक्टेड टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इफ़ दे अनलॉफुली ट्रेड समथिंग, ओके, और इफ़ दे कम्युनिकेट विद द एनिमी कंट्री. ओके, तो इस बहुत सारे रीजंस है, उससे सिटीजनशिप तो कैंसिल हो ही सकती है. ओके, तो इवन अगर फ्रॉड और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से अगर वो सिटीजनशिप ली है तो भी वो कैंसिल हो सकती है. ओके, एंड लास्ट एक्सप्लेनेशन इज कि इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है और एक ही डोमिसाइल है. और खास करके जब 370 का रिमूवल हुआ, क्योंकि अर्लियर जब 370 था तब अ पर्सन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कुड क्लेम दैट ही इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बट इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा लॉजिक ये भी है कि डोमिसाइल एक ही स्टेट का होता है एक पर्सन के लिए, और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में हमने देखा है कि डोमिसाइल कंपलसरी होता है ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट. इतना तो सबको ही पता है एज वी आर स्टडिंग फॉर दिस एग्जाम. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स. ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बट आई विल कॉल इट एन ईजी एज वेल एज मॉडरेट क्वेश्चन. तो पहली चीज़ है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर. नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की. अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयस नॉमिनल पावर. नहीं, ये भी तो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कोई ज़रूरत नहीं है वैसे. अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयस रियल पावर, ये भी एक रियली बिजर स्टेटमेंट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं. इसका आंसर बहुत ही स्ट्रेट अवे है, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम. तो फर्स्ट इज ईजी, इट इज़ वेरी ईजी. ये क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. लॉजिक ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब क्या, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट. ओके, और ये जो पावर्स ऑफ गवर्नमेंट है दे आर लिमिटेड बाय द फंडामेंटल राइट्स विच आर enshrined इन द थर्ड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और देयरफॉर इंडिया में गवर्नमेंट या फिर आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, दे कैन नॉट make any infringement or encroachment on the fundamental rights, and that is nothing but a check by constitution itself. इसी का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड है. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी और सुप्रीमेसी है इंडिया में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी. नाउ दिस वॉज अगेन अ डिबेटेबल क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर, ये एक टफ क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर हम निकाल सकते हैं. वो इस लॉजिक से उन्होंने पूछा है कि बेस्ट सेफगार्ड लिबर्टी का क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी का. लिबर्टी मतलब हमें उसकी एक्सप्लिसिट डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए. लिबर्टी मतलब क्या? रेस्ट्रेन का ना होना, नो एनी रेस्ट्रेंस. एट द सेम टाइम लिबर्टी मतलब क्या? सर्टन राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द इंडिविजुअल. एंड वन ऑफ द होलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ द लिबर्टी इज दैट conditions provided for overall development of a human being, okay, and to reach the fullest potential of a human being. ये लिबर्टी का इसेंशियल मीनिंग है. ओके, पहले तो कमिटेड जुडिशरी. देखिए, ये गलत होगा अगर आपके पास अवेयरनेस है, आपको पता लगेगा कि ये गलत है. अ कमिटेड जुडिशरी इज वन विच इज कमिटेड टू गवर्नमेंट एंड नॉट टू पीपल. ठीक है, यही डिफरेंस है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी और कमिटेड जुडिशरी में डिफरेंस क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट
एंड डिसाइड्स ऑन द लेजिस्लेशन एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन, और कमिटेड जुडिशरी जो रहता है इट इज कमिटेड टू गवर्नमेंट। तो अगर वो गवर्नमेंट को कमिटेड है तो लिबर्टी के चांसेस, अगर एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट आ गई तो लिबर्टी वहाँ पर इम्पिंज हो सकती है, कम हो सकती है, रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, तो ये कमिटेड जुडिशरी तो खत्म हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स, it actually it is against the liberty, as there would be more concentration of power in a country, वहां पर लिबर्टी के चांसेस बहुत कम होंगे। वाई? बिकॉज पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, यही सेंट्रलाइजेशन, इसीलिए तो इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। ये भी लॉजिक हम लगा सकते हैं, तो ये भी इलिमिनेट। इलेक्टेड गवर्नमेंट, जरूरी नहीं है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो आपके पास लिबर्टी हो। फॉर एग्जाम्पल हम 3 एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है रोहिंग्या क्राइसिस का। अब म्यांमार में तो इलेक्शन होता ही है। दूसरा एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी वहाँ पर रोहिंग्यास का इतनी क्लिनजिंग किया गया, दे फ्लेड टू दी सराउंडिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये कि रोहिंग्यास इंस्पाइट की म्यांमार में इलेक्टेड गवर्नमेंट या फिर इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर भी लिबर्टी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। एट द सेम टाइम नेपाल में भी मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मधेसी इशू तो हमने सुना ही होगा, एम आई राइट? साथ ही साथ फ्रांस में भी हमने देखा है कि बहुत सारे रिलीजियस राइट्स एज वेल एज लिबर्टी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन ऑल ऑफ दिस कंट्रीज इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है, लेकिन फिर भी लिबर्टी पर कुछ ना कुछ सवाल है। तो डेफिनेटली ये आंसर नहीं, इसका आंसर है सेपरेशन ऑफ पावर। लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन। हमें ये भी याद रखना चाहिए, वी हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स बेस्ट सेफगार्ड पूछा है उन्होंने। ओके, सो दीज ऑल options you have to eliminate on the basis of which is the best safeguard for the liberty. Okay, so it was a moderate question. Best safeguard देखिए, committed judiciary मतलब committed to the government है। ओके, वो लिबर्टी लोगों की, खास करके माइनॉरिटीज की, मतलब सेफगार्ड नहीं कर सकता। वाई? फॉर एग्जाम्पल, अगर कमिटेड जुडिशरी इज कमिटेड टू अ गवर्नमेंट ए, ओके, और where the majority of the population is A and minority of population is B, तो वेरी हाई चांसेस है कि कमिटेड जुडिशरी और गवर्नमेंट मिलकर इन बी वाले माइनॉरिटीज की लिबर्टी के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पिंजमेंट कर दे। एम आई राइट? तो फिर दैट्स वाई कमिटेड जुडिशरी डजंट सेफगार्ड्स स्पेशली फॉर माइनॉरिटीज। सेंट्रलाइजेशन तो टोटली अगेंस्ट द लिबरल डेमोक्रेसी है। एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट डजंट मीन्स, हमने तो बात किया, इलेक्शन मतलब क्या रहता है, मेजॉरिटी ऑफ रूल रहता है। ठीक है, मेजॉरिटी रूल रहता है इलेक्शन में। अगर 1000 वोट्स है और अगर 800 वोट्स एक कैंडिडेट को मिले, तो 200 लोगों ने जिन्होंने इलेक्टेड कैंडिडेट्स को वोट नहीं दिया वो माइनॉरिटीज बन गए। तो इट इज़ रूल ऑफ मेजॉरिटी, रूल ऑफ फ्यू ओवर अदर्स, राइट? तो इलेक्शन इसीलिए नहीं है। देयरफॉर इसका आंसर आ जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। एक बार सेपरेशन ऑफ पावर को देख लेते। सेपरेशन ऑफ पावर इज नथिंग बट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रियास पॉलिटिका, राइट? वो जनरली ये कहता है कि गवर्नमेंट के जो 3 आर्म्स है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू वन अनदर, राइट? एंड एज दे डू दिस देर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, देर इज डिफ्यूजन ऑफ पावर, देर इज चेक्स एंड बैलेंस, एंड दिस प्रिजर्व्स लिबर्टी एंड अवॉइड्स द टिरेनी। अब शायद आपको लॉजिक लग गया रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर सेपरेशन ऑफ पावर क्यों आता है। ओके, और हमें तो पता है सेपरेशन ऑफ पावर वाज गिवन बाय लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट? ठीक है, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इन द सेक्शन ऑफ पॉलिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर पूछा है बेस्ट डिफाइंस, तो सारे जो ऑप्शंस है वो सही है, बट यू हैव टू पिक द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। एम आई राइट? यू हैव टू पिक द बेस्ट डेफिनेशन। तो लेट्स सी, अगर डी ऑप्शन को देखें, अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन द डेफिनेट टेरिटरी विद सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो एक बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए स्टेट के। इट इज नॉट एन एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सी स्टेटमेंट को देखिए, अ नंबर ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। ये एक डेफिनेशन इधर सिविलाइजेशन का हो सकता है या फिर नेशन का हो सकता है, लेकिन स्टेट का नहीं हो सकता, क्योंकि सिविलाइजेशन और नेशन में हम कल्चर, ट्रेडिशन, इस चीज़ों की बात करते हैं। एम आई राइट? तो इट कुड बी डेफिनेशन ऑफ नेशन मोस्ट प्रोबेबली और सिविलाइजेशन, लेकिन स्टेट का तो डेफिनेशन नहीं है। अब ये 20 ऑप्शन और एक ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन है, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस कंफ्यूजन। अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल of a definite territory possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights, safeguard their means of sustenance.
अब ये बहुत ही एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि नेचुरल राइट्स को सेव करना है, उनके सस्टेनेंस को भी सेव करना है. दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट्स. ओके, ये स्टेट्स के ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेशन नहीं है. इसका आंसर आता है ए, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट डेफिनेशन है. देखो, पहले तो एक परमानेंटली पीपल लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी, मतलब डेफिनेट टेरिटरी प्लस पॉपुलेशन. ओके, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब क्या, सोवरिनिटी. एंड दे पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंटल रूल. तो ये है परफेक्ट डेफिनेशन है स्टेट की. ओके, इस क्वेश्चन से हमें ये भी पता लगता है कि एग्जामिनर का इंटेंट क्या है. एग्जामिनर का इंटेंट क्या है? ही वांटेड यू टू गिव द आंसर टू द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट. तो जब वो बेस्ट डेफिनेशन पूछेगा, वो क्या करेगा, 4 ऑप्शन में से दो ऑप्शन या फिर एक ऑप्शन वो डेफिनेशन देगा, और बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शन वो कुछ भी दे सकता है. मे बी ऑब्जेक्टिव्स दे दे, मे बी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दे. Am I right? And these objectives and characteristics will be similar to the definition of state, but they won't be the exact definition of the state. ये हमको समझना होगा. ठीक है, ये सारे ऑप्शंस, इसका आंसर ए है. इसका मतलब ये नहीं है कि बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है. They are objectives or either characteristics of state. They are not explicitly the best definition of the state. ठीक है, लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन. सी डी तो पहले एलिमिनेट हो गया, हम ए बी पे आ जाते हैं 50%. इसकी अगर कंसेप्ट को जानना हो तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा आंसर है, दैट इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ स्टेट गिवन इन द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन. ठीक है, ये एक कन्वेंशन हुआ था जब स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी. ठीक है, लेकिन ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट ये है कि एज पर एनसीईआरटी, political institution that represents a sovereign people who occupy a definite territory is called as state. ठीक है, और सोवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल कंट्रोल, ये तो हम जानते हैं. और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडियन स्टेट हैज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट. स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. हम जानते हैं कि 3 ऑल्सो कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट, नेशन, गवर्नमेंट एंड स्टेट. देखो, नेशन और स्टेट कांस्टेंट रहता है, ओके, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होते रहती है ड्यू टू इलेक्शंस. ओके, एंड ईच ऑफ दिस कंसेप्ट्स आर डिफरेंट एंड यू कैन नॉट यूज देम इंटरचेंजेबली. इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर अगर डिबेटेबल है, लेकिन लॉजिक से हमने फाइंड आउट किया कि इसका आंसर ए ही है. ओके, क्योंकि ये जो बी है, दोज आर नथिंग बट दोज आर मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. Now let's go to the next question. Which one of the following in the Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? Direct hit question है. उन्होंने पूछा essential feature क्या है जो कि फेडरलिज्म कैरेक्टर को डिफाइन करता है, इंडियन फेडरलिज्म के कैरेक्टर को. ओके, ये भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन था. क्यों डिबेटेबल क्वेश्चन था हमें पता है. ऑप्शन नंबर डी तो बहुत वेग है. फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, नहीं, इसका फेडरलिज्म से कोई नाता नहीं है. सी को भी इलिमिनेट कर दिया क्योंकि यूनियन कैबिनेट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दी रीजनल पार्टीज, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है रीजनल पार्टीज का और फेडरलिज्म का कोई. बट द मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आर ए एंड बी, बिकॉज ए ऑप्शन इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बी ऑप्शन शोज यू नथिंग बट बाई कैमरल लेजिस्लेशन. लेकिन ये जो बी ऑप्शन है वो इनडायरेक्टली बाई कैमरल लेजिस्लेशन को बता रहा है. इट इज नॉट कंप्लीटली टेलिंग बाई कैमरल लेजिस्लेशन. इसका आंसर ए ही है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी का जो इसेंशियल फीचर है जो कि फेडरल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अगर एनसीईआरटी आप ठीक से पढ़े तो आपको पता लग जाएगा. इट इज इजी बट डिबेटेबल, लॉजिकल है. इसेंशियल फीचर पूछा है, जस्ट फीचर नहीं पूछा है. फेडरलिज्म के बहुत सारे फीचर्स होंगे, लेकिन इसेंशियल फीचर जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दैट इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इट इज नॉट बाईकैमरल लेजिस्लेशन. एनसीईआरटी में स्ट्रिक्टली बाईकैमरल लेजिस्लेशन एक इसेंशियल फीचर है ऐसा मेंशन नहीं किया गया है. 5 to 6 पॉइंट्स है एनसीईआरटी में, यू कैन गो एंड लुक एट इट. ओके, ये एक फीचर है बट इसेंशियल फीचर नहीं है. ओके, तो इसीलिए इसका आंसर इंडिपेंडेंट जुडिशरी आता है. तो वही है, देखिए ये सारे फीचर्स हो गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बट वी शुड नो एंड वी नो इट फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज वन ऑफ द essential feature. Written constitution is also essential feature. Okay, let's go to the next question. अभी ये क्वेश्चन को देखिए. क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन इंडिया देयर इज नो लॉ restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from the 3 constituencies. In 1991 Lok Sabha elections, Sri Devilal contested from the 3 Lok Sabha constituencies. Okay, and as per existing rule, if candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies,
His party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him in the event of him or her winning in all the constituencies. Okay, तो तीनों statements यहाँ पर दिए गए हैं and we have to find out which is correct. Okay, अब अगर पहली स्टेटमेंट को देखें, there is no law. देखो एक एक्सट्रीम वर्ड है, तो हम इस स्टेटमेंट को इलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर इलिमिनेशन का चांस है. ऐसा तो होगा नहीं. देखो 19 सिंपल अवेयरनेस 1991 में हाई पॉसिबिलिटी है कि तब होता रहेगा कि कोई भी 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज से खड़ा हो सकता है. लेकिन अब तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने देखे हैं, एम आई राइट? तो जब रिफॉर्म्स हो रहे हैं, आई थिंक देयर वुड बी सम लॉ विच वुड रेस्ट्रिक्ट द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग फ्रॉम मोर देन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और दे वुड हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर 1 कैंडिडेट फॉर 1 इलेक्शन ऑफ लोकसभा. ओके, तो पहला हमने एलिमिनेट कर दिया. अब डी के पास जाते हैं. थोड़ा लॉजिक लगाइए. ये एक इलेक्टोरल रिफॉर्म है. दिस इज अ इलेक्टोरल रिफॉर्म. ये सच नहीं है, ये एक इलेक्टोरल रिफॉर्म है. देयरफॉर ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है और इसका आंसर आ जाता है बी. ओके, क्योंकि 1991 में सच है, श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट किया था. ओके, ये टफ है लेकिन इलिमिनेशन काम देता है. कभी कभार अवेयरनेस और इलिमिनेशन काम देता है. पहले तो ये नो लॉ का जो वर्ड है उसको हमने इलिमिनेट किया, और 1991 में सही में श्री देवीलाल ने 3 जगह से मतलब इलेक्शन लड़ा था. ओके, लेकिन ये 1991 में हुआ था. 1996 में रूल चेंज हो गया. ओके, और सेक्शन 33(7) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इन 1996 मेड इट वेरी क्लियर दैट 1 कैंडिडेट कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकते. ये कब से हुआ है? 1996 से. 1996 के पहले आप हो सकते थे. ओके, नाउ इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट इन लोकसभा इलेक्शन, अगर वो मल्टीपल जैसे कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से करता है, अगर इलेक्ट होता है, एंड इफ ही गेट्स इलेक्टेड इन बोथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो उसको एक सीट पर ही कैन रिप्रेजेंट दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो द सेकेंड स्टेट विल बिकम वैकेंट. अगर वो वैकेंट हो गई तो वहां पर बाई इलेक्शंस होंगे, और उस बाई इलेक्शंस को टैक्सेशन और टैक्स पेयर्स का मनी यूज होगा. एम आई राइट? देयरफॉर ये रिफॉर्म सजेस्ट किया गया है, लेकिन ये एग्जिस्टिंग रूल नहीं है. देयरफॉर इसका आंसर 2 आता है. आई थिंक वी आर मोर देन क्लियर हियर. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज अवर मॉडल डिफर्स फ्रॉम दैट मॉडल? तो सिंपली उन्होंने पूछा है कि यूके का जो पार्लियामेंट्री सेटअप है और इंडिया का पार्लियामेंट्री सेटअप है, इसमें अगर आपको सिंपल डिफरेंस भी पता हो, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. एज रिगार्ड्स टू द लेजिस्लेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरिन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड. ये तो सही बात है. क्यों? बिकॉज ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी. इन इंडिया इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी. कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम देन पार्लियामेंट इन इंडिया. ठीक है, जो हमने पहले बात की थी, सेपरेशन ऑफ पावर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विच लिमिट्स द गवर्नमेंट. तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर सुप्रीम देन द लेजिस्लेशन और देन द पार्लियामेंट. ओके, लेकिन ब्रिटेन में उल्टा है, वहां पर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी या फिर सुप्रीमसी है. ओके, इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट. हाँ, ये सही बात है. इट कैन, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है किसी भी अमेंडमेंट की पार्लियामेंट के, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जा सकती है. ओके, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा बी. फर्स्ट को हमने इलिमिनेट कर दिया. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का. ये एक मॉडरेट क्वेश्चन था. अप्लाई बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके एंड इंडिया. पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहाँ पर है? यूके में है. कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी कहाँ पे है? इंडिया में है. देखो यहीं से आंसर सॉल्व हो गया. और कंसेप्चुअली अगर देखने जाए तो 2017 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट्स की केस को हियर किया था. ओके, तो ये भी जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो इसलिए करेक्ट है. ठीक है, अब वो स्टेटमेंट बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो स्टेटमेंट भी गलत है, बट सी वहां सेकंड स्टेटमेंट में यूपीएससी ने कहीं पर भी मस्ट यूज नहीं किया है. ठीक है, सो एक्चुअली इट इज लाइक अगर कोई भी अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखनी हो तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैन डू इट. ओके, दे कैन रिव्यू इट. ओके, तो यहां पर उस स्टेटमेंट में कहीं पर भी डजंट से ओनली, मतलब
कहीं पर भी उस स्टेटमेंट में ओनली मेंशन नहीं किया गया था या फिर मस्ट नहीं किया गया था. सो देयरफॉर दैट स्टेटमेंट इज जनरल एंड इट इज करेक्ट. और मैंने पहले ही कहा था मोस्ट ऑफ द जनरल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. So question number 13, with reference to Indian judiciary, consider the following statements. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. हम जानते हैं ad hoc judges as well as retired judges को भी फिर से बुला लेते हैं. पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी वैकेंसी है, तो ऐसा किया जा सकता है. वेरी जनरल स्टेटमेंट करेक्ट है. हाई कोर्ट इन इंडिया हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट डज. सही बात है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कोर्ट्स को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है? अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट या फिर वर्डिक्ट दे दी और थोड़े साल बाद अगर सेम केस आ जाता है, सो दे हैव पावर टू रिव्यू देयर ओन जजमेंट. ओके, तो वो खुद के ही जजमेंट को रिव्यू भी कर सकते हैं. उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं. ओके, सो मॉडरेट था, नॉलेज बेस्ड था. शॉर्टेज ऑफ जजेस ये लॉजिक लग सकता है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये तो कंसेप्चुअल है. आर्टिकल 128 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी रिटायर्ड जज को बुलाया जा सकता है. और आर्टिकल 226 एक्सप्लिसिटली बोलता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मतलब दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. सुप्रीम कोर्ट तो हम जानते ही उनके पास रिव्यू का पावर होता है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज नथिंग मोर हियर टू डिस्कस. सो क्वेश्चन नंबर 14, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द जुडिशियल कस्टडी मीन्स एंड कस्टडी इज इन the judicial custody means an accused is in custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station and not in jail. And second statement says during judicial custody the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. इधर पूरा का पूरा वर्ड एसोसिएशन करना है और इलिमिनेशन भी काम देता है. सिंपल सी चीज़ है. एक होती है जुडिशियल कस्टडी और एक होती है पुलिस कस्टडी. ओके, तो इससे ही हमारा आंसर आ जाएगा. तो वर्ड एसोसिएशन करिए. जुडिशियल कस्टडी मतलब जज रिलेटेड होगा. पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस हैज द फिजिकल कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड और एंड ही इज केप्ट इन द पुलिस स्टेशन. एम आई राइट? लेकिन जुडिशियल कस्टडी मतलब क्या? द अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मैजिस्ट्रेट. और ऐसे केसेस में मोस्ट ऑफ द अक्यूज्ड आर लॉक्ड अप इन जेल. एंड इफ during such judicial custody, if police officer in charge, like whoever is in charge, if he wants to interrogate, then he should definitely take the permission of the judge or take the approval of the court. So ये बहुत बड़े दो differences है. therefore इसका आंसर तो सेकेंड आ जाएगा, बी. फर्स्ट could be eliminated. why? because judicial custody में कौन प्रिवेल करता है? it is by the judge. okay, और दी कंसर्न मैजिस्ट्रेट. एंड ऐसे अक्यूज्ड को जिनकी जुडिशियल कस्टडी ली जाती है दे आर केप्ट नॉट इन पुलिस स्टेशन बट इन जेल. ओके, लेकिन पुलिस केसेस में कैसे होता है? दे आर सोली इन द पुलिस स्टेशन. ओके, तो इसका आंसर सेकंड आ जाता है. बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था. वर्ड एसोसिएशन से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes the matter of his or her right. ये है फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि परोल एक प्रिजनर का राइट है. ओके, एंड दैट कैनॉट बी डिनाइड. सेकेंड, द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पेरोल रूल्स. ठीक है, ये भी एक अवेयरनेस का क्वेश्चन है और साथ ही साथ लॉजिकल क्वेश्चन है. ठीक है, इसको सॉल्व किया जा सकता है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. पेरोल किस लिए दिया जाता है? पेरोल इज गिवन फॉर दोज प्रिजनर्स टू कम आउट एंड मीट देयर फैमिलीज फॉर सम टाइम. ओके, बट पेरोल जो है दैट इज नॉट अ राइट ऑफ द प्रिजनर. ओके, दैट इज ओनली डिस्क्रिशनरी. वो अगर कोर्ट को लगता है तो ही उनको परमिशन मिलती है, वो एक राइट नहीं है. देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. बट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर हम बहुत सारे केसेस देखें, अगर सुशांत सिंह राजपूत हो गया या फिर संजय दत्त की भी इवन केस देखें, तो वहाँ पर संजय दत्त यूज टू ऑलवेज कम आउट ऑफ द जेल ऑन द पेरोल. ओके, सो ऐसे केसेस में भी हमें कभी कभार नॉलेज अप्लाई करना होता है और बैकग्राउंड नॉलेज या फिर स्टैटिक नॉलेज को करंट अफेयर्स के या फिर कोई भी सिंपल न्यूज से रिलेट करना होता है, तब हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं. ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते. मॉडरेट है, लॉजिकल और नॉलेज बेस्ड है. तो परोल एक राइट नहीं है. ओके, ये एक प्रिविलेज है.
ठीक है। परोल और फरलो दो नाम की चीज़ें होती है। फरलो मतलब लीव होती है, ओके। दोनों का आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या होता है। बट जनरली जो परोल होता है, इट इज़ अ प्रिविलेज, इट इज़ नॉट राइट टू द प्रिजम, देयर फॉर इट कैन बी डिनाइड, ओके। जो कि स्टेटमेंट में नहीं कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इट कैन नॉट बी डिनाइड, सो देयर फॉर दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि प्रिजन और पर्सन जो है, दीज आर 4 पीज विच कम्स इन दी स्टेट लिस्ट। कौन से 4 पीज है जो स्टेट लिस्ट में आते हैं? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड प्रिजन्स। अगर प्रिजन स्टेट लिस्ट में आते हैं तो डेफिनेटली हर स्टेट का कोई ना कोई प्रिजन रिलीज ऑन परोल हो सकता है, हर स्टेट का अलग अलग होगा, ओके। तो यही लॉजिक था। और थोड़े केसेस का भी लॉजिक लगाओ, जैसे कि संजय दत्त के जो परोल अंदर बाहर जा रहे थे संजय दत्त, ओके, तो इससे भी आप लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पेरोल्स को उनके डिनाई भी किया गया था और बहुत सारे पेरोल्स को एक्सेप्ट भी किया गया था। सो अवेयरनेस डेफिनेटली मैटर्स हियर। So question 16, with reference to union government, consider the following statements. Gopal Swamy Iyengar committee suggested that the minister and a secretary be designated solely for the pursuing of the subject of administrative reform and promoting it. And second statement says, in 1917, the Department of Personnel was constituted on the recommendations of ARC 1966 and this was placed under the Prime Minister's charge. ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट्स स्टैटिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। आपको एक वास्ट रीडिंग होनी चाहिए, और इवन इफ यू डोंट हैव वास्ट रीडिंग तो यू कैन टेक अ रिस्क, बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड। अगर आपने बहुत कम अटेम्प्ट किए देन ओनली यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज आई थिंक यू शुड लीव दिस क्वेश्चन, यू शुड स्किप दिस क्वेश्चन। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपके पास बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं इसके बारे में। एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन जो दिया गया था वो ARC फर्स्ट ARC ने दिया था 1961 के, और सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। मतलब बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, नीदर वन एंड नीदर टू। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ARC, ये तो सही है, बट इट वॉज नॉट प्लेस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर चार्ज, ओके। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल टुडे इज अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज, but earlier it was not under prime minister charge, it was under the cabinet secretary, okay। और ये जो गोपाल स्वामी अयंगर है, उन्होंने रिपोर्ट तो दी थी, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट दी थी, दैट स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, उन्होंने रिपोर्ट दी थी, बट दी recommendations which are mentioned in that statement, those are explicitly from the first ARC report, ठीक है। ये एक टफ क्वेश्चन था, रूटीन प्रिपरेशन से भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। M लक्ष्मीकांत या फिर कोई भी NCERT सोर्स में ये नहीं है, यू शुड ट्राई टू स्किप सच क्वेश्चंस, बट अगर आपके पास थोड़ी नॉलेज हो तो यू कैन इवन गो फॉर इट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। एट द नेशनल लेवल, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest right act 2006? बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसका आंसर डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आ जाता है। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो इवन ए में कंफ्यूजन हो जाए, बट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दोज आर मोर रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। खास करके फॉरेस्ट राइट्स जो होते हैं वो ट्राइबल्स के ट्राइबल अफेयर्स ही देखता है, ओके। तो ईजी है, वर्ड एसोसिएशन करके आ सकता है, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर द टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये गलत है, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स को टाइटल कंसिडर नहीं किया जाता है आर्टिकल 18 के अंदर, ओके। दीज आर नॉट कंसिडर्ड, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट होगी, और उन्होंने पूछा देखो क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो ये भी यू हैव टू सी इट वेरी विजिलेंटली, ओके, कि करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है। देन सेकंड स्टेटमेंट इज पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1954, सही है, वो 1954 में ही इंस्टीट्यूट करे गए थे। वेर सस्पेंडेड ओनली वंस, अब ओनली वंस है, बट द मोर लॉजिक इज कि एक बार तो सस्पेंड हुए हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ये तो हमें पता है, लेकिन उसके साथ साथ और एक बार हुए हैं, सो दे हैव बीन सस्पेंडेड फॉर 2 times, okay, and the number of Bharat Ratna awards is restricted to maximum of 5. 5 भारत रत्न एक साल में, दिस इज वेरी इलॉजिकल स्टेटमेंट। मैक्सिमम 3 ही जनों को भारत रत्न दे सकते साल में, ओके। सो देयरफॉर इसका आंसर है डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग हियर। इट ऑप्शन वाइज इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगर कंसेप्ट देखे तो दीज आर वेरी इजी स्टेटमेंट्स टू एलिमिनेट, ओके। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन, मॉडरेट है, अप्लाइड नॉलेज थोड़ा इस्तेमाल करना है। भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड
टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 2 बार इनका डिसकंटिन्यूएशन किया गया था, एक 1977 में, ओके, जब इमरजेंसी की बात हुई थी, एंड वन मोर टाइम इन 1966, ओके। एंड तभी वो चीज़ डिक्लेयर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब रूल किया था दैट दीज अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18, okay, so they are suspended 2 times, and we all know, so in 1992 to 95 they were suspended, so after 95 1996 सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि दीज आर नॉट टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18, ठीक है, एंड मैक्सिमम 3 पीपल को ही ये अवार्ड दिया जा सकता है पर ईयर, ओके। बट इस कोई भी फैक्ट्स इसमें से लक्ष्मीकांत में बहुत इजीली मेंशन नहीं है, बट स्टिल applied knowledge really works. So with this, the section of polity has been completed. I hope you liked the logic as well as the applied knowledge we have applied. We'll see you next time with the next subject. Till then, keep learning. Okay, thank you.